In the previous class, we discussed about the magnetic field intensity, and on the behalf of a formula, we discussed the definition for magnetic field intensity, and you can find out the value, means magnitude of magnetic field intensity. But to represent the direction of magnetic field intensity, we use some rules which we have already discussed, but there are some imaginary lines which are used to represent the direction of magnetic field. तो किसी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन इमेजिनरी लाइंस की हम बात कर रहे हैं, दोज इमेजिनरी लाइंस आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो फॉर इमेजिनरी लाइंस which are used to represent the direction of magnetic field, we call them magnetic field lines. जैसे आपने कहा किसी मैग्नेट की बात करें, in a magnet we consider that the imaginary lines they form a closed continuous curve. Closed means this is the closed one, this is the closed one. So this is the closed continuous curve, and this formation is completely imaginary. This formation is completely imaginary, and these lines represent the magnetic field. If you draw a tangent at any point, you know the tangent in the mathematics, किसी भी पॉइंट पर अगर आप उसको टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, वी कॉल दैट टेंजेंट. सो if you draw a tangent at any point on these field lines, they will represent, that tangent will represent the direction of magnetic field at that point. So this is the imaginary lines which we use to represent the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे. और अगर आप देख पा रहे हैं तो इस वाले केस को अगर हम जब फॉर्म कर रहे हैं, you can say that outside the magnet they moves from north to south, and inside the magnet they are moving from south to north inside that, and outside they are moving from north to south, and you can also draw these lines in this way. Fine. So we have to discuss the property of these lines, and property of these lines will be very useful for a topic we call that EMI, that is a branch of physics, electromagnetic induction. So later on we will discuss the EMI also. So first of all, write down the definition for the magnetic field intensity. We define magnetic field intensity: imaginary lines which are used to represent the direction of magnetic field. Magnetic field lines, imaginary lines which are used to represent the direction of magnetic field. Fine. Then you can draw this diagram, and after that diagram you have to mention the properties of magnetic field lines. Properties. Okay. First property, you can draw this diagram, and after that you have to be write the property for magnetic field line. The very first property is, these are imaginary lines. Number one, imaginary lines used to represent the direction of magnetic field. Imaginary lines used to represent the direction of magnetic field. That is the first. और सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो आपने क्या बोला कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस represent the direction of magnetic field at that point. So you can also mention the second property for that: tangent at a point on magnetic field line, tangent at a point on magnetic field line represent tangent at a point on magnetic field line represent the direction of magnetic field, represent the direction of magnetic field at that point, represent the direction of magnetic field at that point. Fine. Number third, these lines, they never intersect each other. These lines never intersect each other. Why they never intersect each other? If they intersect, suppose they are intersecting each other, then we can draw a tangent in this way,
as well as we can also draw a tangent in this way. Means at a single point we can draw two tangent, and two tangent means two direction of magnetic field at that point. And we all know at a particular point there will be a resultive direction of magnetic field. There will be no two direction, means two direction at a point is not possible. It means they will never intersect each other. So these line will never intersect each other. So the third property of that, they never intersect each other. They never intersect each other. And write in the bracket, if they intersect, write in the bracket, if they intersect, then there will be two direction. If they intersect, then there will be two direction of magnetic field at a point. There will be two direction of magnetic field at a point, which is not possible. Okay, so that is the third property of magnetic field line. Next, fourth property. Outside the magnet they move from north to south, and inside they move from south to north. So write down that outside the magnet they move from north pole to south pole, and inside the magnet they move from south pole to north pole. Outside they move from north to south, and inside that south to north. तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या आप कह दें कि किसी भी कॉइल के लिए भी आपने जब फाइंड आउट किया, आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है का मतलब फील्ड लाइंस मूविंग इनसाइड दैट, इट मींस दैट पोल विल बिहेव एज साउथ पोल. एंड if the magnetic field is coming outward like that, then we can say that pole will behave as north pole. So north pole and south pole की formation भी हम इससे ले सकते हैं. एक और इसकी बात करें, you can see that these lines are close here. So they show the strong magnetic field, and we already discussed that attractive power or pole strength is more, means attractive nature is more at the poles, and it decreases at the midpoint, decreases when we move towards the mid of that magnet. Okay, so if they are close to each other, these lines are close to each other, they will represent the strong magnetic field, and if they are apart, they will show the weak magnetic field. So write down the next. If they are close to each other, they represent strong magnetic field. And if they are apart, they show weak magnetic field. And one more, हमने वैसे फर्स्ट उसमें ले लिया कि these are close continuous curve, तो continuous curve आने के बाद, so these are the properties for the magnetic field lines, and these lines are very important for EMI. और इन्हीं लाइन्स से हमारा एक और टर्म हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. दैट टर्म इज मैग्नेटिक फ्लक्स. FLUX flux. What is magnetic flux? Magnetic flux represent how many magnetic field lines are passing from an area. Suppose that this is an area, or you can say this is a coil. So how many field lines are passing from this? How many lines, magnetic field lines are passing from that particular area? That number represent the magnetic flux. Okay, so this is just a number, so it's a scalar quantity. So you can write that magnetic flux, number of magnetic field lines passing from an area, is called magnetic flux. इसका एक और डेफिनेशन फॉर्म करते हैं, वो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में है.
देखो वेक्टर्स और स्केलर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं. मीन्स फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वी कॉल देम वेक्टर. And the physical quantity which required only magnitude, no direction is required, we call such physical quantity scalar quantity. Okay, so in the senior classes you will discuss the products of vectors, और उन्हीं वेक्टर्स के प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक प्रोडक्ट हम कहते हैं दैट इज स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ऐसा वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिनसे मिलने वाला जो क्वांटिटी होगा वो कैसा होगा, स्केलर. दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिससे मिलने वाला जो नया फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या मिले, स्केलर, तो स्केलर प्रोडक्ट. और दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिससे मिलने वाला फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है, वी कॉल दैट वेक्टर प्रोडक्ट. फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, जैसे अपने 9th में भी लिखा था. 9th में हम वर्क डन को डिफाइन करते हैं. वर्क डन का डेफिनेशन जो परफेक्ट फिजिकल उस फॉर्मेशन में बात करें तो दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. याद आ रहा है 9th में वर्क डन को कैसे डिफाइन किया था, वर्क डन का डेफिनेशन दिया था दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. और ये जो डॉट आ रहा था इसको स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, तो इनसे मिलने वाला जो क्वांटिटी था वो कैसा था, स्केलर. तो वर्क डन आपको पता ही है कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. तो ये स्केलर क्वांटिटी यहाँ मिला. और आपको याद आ रहा हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किया था तो क्या लिखा था, एफ एस कॉस थीटा. रिमेंबर दैट, वेरी गुड. सो दिस इज एफ एस कॉस थीटा. हम एक जनरल बात करें कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इन दोनों का हमने क्या किया, एक डॉट प्रोडक्ट किया यानी स्केलर प्रोडक्ट किया. जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे दैट विल बी ए बी कॉस थीटा, फाइन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर. थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर. और वहां आपने तो वर्क डन के लिए फाइंड आउट किया था कि इफ थीटा इज 0 मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, then theta 0 cos 0 is 1. so maximum work you have to be done. वो एक और एग्जांपल लेते हैं, कूली कोई वर्क नहीं करता. फिजिक्स के अकॉर्डिंग कूली कोई वर्क नहीं करता. क्यों नहीं करता कूली वर्क, क्योंकि आपने कैसे कहा था कि इफ अ पर्सन, ना कूली ऐसे होते ना, ठीक है, कोई वेट उनके ऊपर लगा दिया, वेट किधर गया, फोर्स किधर गया, mg डाउनवर्ड, एंड इस बंदे को किधर जाना है, आपका जो भी सामान लेके जाना है तो इधर मूव करना है, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. वेट किधर लग रहा है उसका पूरा जो भी बॉडी का और जो भी लगेज आपने उनको दिया है. एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90, सो cos 90 इज 0. तो हम कहते हैं नो वर्क डन बाय दैट कूली. याद आ रहा है, चलो गुड. फिलहाल हमें सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि स्केलर प्रोडक्ट का मतलब a डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा. सो मैग्नेटिक फ्लक्स वी डिनोट इट फाई. कैसे डिनोट करते हैं, फाई से. अगर जब सीनियर क्लासेस की बात करेंगे तो वहाँ दो टर्म यूज़ की जाती हैं, फाई ई और फाई बी. ए स्टैंडिंग फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड बी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स. तो हमारे सिलेबस में तो इलेक्ट्रिक का तो कोई मतलब ही नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं. तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आपको किससे लिखना चाहिए, फाई बी से. पर यहाँ अब एक ही फ्लक्स है तो एक ही फ्लक्स के लिए तो हम फाई यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कभी आपको नज़र आ जाए फाई ई that is magnetic, that is electric flux and phi b is magnetic flux. अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया. एंड मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए तो आपने लिख ही लिया है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. तो अभी हम फिलहाल किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाई से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो फाई कैन बी डिफाइंड एज just like a work done. So you can define it a scalar product, dot product, scalar product of magnetic field intensity and area of cross section. Scalar product of magnetic field intensity and area of cross section is known as magnetic flux. Define कर सकते हैं. So we can also write it phi equals to बी ए कॉस थीटा. सो और लगा कि इसका डेफिनेशन, पहला तो हमने क्या दिया कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम दैट एरिया. अब हम इसको स्केलर प्रोडक्ट यानी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जिसको देना चाहते हैं वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी दे दें, क्योंकि हम 12th वालों से कम नहीं है. ठीक है, तो जरा डेफिनेशन बना दें
लिखें, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, scalar product of magnetic field intensity and area of cross section is equals to, is known as magnetic flux, scalar product of magnetic field intensity and area of cross section is called magnetic flux. And then you can write phi equals to b dot a, phi equals to what? ba cos theta. Now theta, it's very important, so we can write that if theta is 0, guess first, if theta is 0, then cos 0, it's 0. ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने बहुत अच्छे से सर ने पढ़ा दिया है, तो cos 0 is 1, sorry ना, cos 0 is 1. So cos 0 is 1, then phi will be equals to BA, cos 0 1 कर दिया है, तो cos का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1. इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा वाला फ्लक्स हुआ, मैक्सिमम वैल्यू का फ्लक्स हो गया. इसके अभी केसेस और बताता हूँ एक एग्जांपल के बिहाफ पर. क्या सेकंड भी हम मेंशन कर ले, क्या होगा, इफ थीटा इज 90 डिग्री then cos 90 it is 0, cos 90 is 0, then phi will be equals to 0. It means magnetic flux will be 0 if the angle between area and magnetic field is 90. So take a practical examination, practical example for that. Suppose this is an area. Area is a vector quantity ना. हमें ऐसा लगता है कि एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, सर इसमें कौन सा डायरेक्शन. याद रखिएगा फिजिक्स में एरिया को वेक्टर के फॉर्म में कंसीडर किया गया है. इलेक्ट्रिक करंट भले स्केलर है लेकिन एरिया कैसा है, वेक्टर. और इसका जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दैट सरफेस. जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल इसको कहते हैं. तो ये सरफेस है सपोज करिएगा, और इस एरिया का अगर आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो क्या इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके परपेंडिकुलर. फाइन. फर्स्ट केस की बात करते हैं. फर्स्ट केस में हमने कहा कि थीटा 0. सपोज करिएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा हुआ, ये मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मूविंग इन दिस वे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये. अब आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे रखा इस सरफेस को, तो इस सरफेस का एरिया क्या हुआ, परपेंडिकुलर. ये उसका डायरेक्शन हो गया एरिया का, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले से ही कौन सा है, ये. दोनों क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में हुआ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0. तो फ्लक्स कितना पास होना चाहिए, मैक्सिमम, यानी फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास होनी चाहिए. प्रैक्टिकली देखें, इधर से फील्ड लाइंस आएंगी, इसको अगर आपने ऐसे प्लेस किया है तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसमें से पास होकर के चला जाएगा. लेकिन अगर हम इसको ऐसे प्लेस कर दें तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में, पर इसका एरिया कैसा हुआ, वर्टिकली अपवर्ड. दोनों के बीच का एंगल 90, और cos 90 वाले केस में हमने कहा कि फाई कितना, 0, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास आउट होगा, 0. ज़रा चेक करें, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे आएंगी, ऊपर से निकल के चली जाएंगी, नीचे से निकल के चली जाएंगी, बट इस सरफेस एरिया से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट नहीं होगी. तो हमारे लिए फ्लक्स कितना होगा, 0. बट इस केस में जो पहला केस है हमारा, उसमें मैक्सिमम फील्ड लाइंस यहाँ से क्या होनी है, पास आउट होनी है. तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे जिनमें हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिहाफ पर ही हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के. और इन मैग्नेटिक फ्लक्स को ध्यान में रखते हुए ही अब हमारा जो नेक्स्ट ब्रांच होगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इनको वीडियोस को रेगुलर देखते रहें, और बार बार वही कहता हूँ, आपको लगता है कि हाँ आपने पूरा अंडरस्टूड कर दिया है, अच्छा लगा है, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू.